سب سے پہلے کہ خبر درست ہے کہ کل جو اجلاس ہوا احتجاج کے حوالے سے اس میں بشرا بی بی نے بھی شرکت کی؟ دیکھیں میں تو اس خبر کو درست نہیں کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بشرا بی بی نے تو کسی اجلاس کی صدارت نہیں کی، اور اجلاس تو احتجاج کے حوالے سے تقریباً ہر روز ہی مختلف مشاورتیں ہو رہی ہیں، گروپوں میں بھی اور بڑے لیول پر بھی، اور وہ تو پارٹی کر رہی ہے. علی امین گنڈاپور صاحب ہیں اور باقی پارٹی کے مرکزی رہنما جو ہیں وہ بھی موجود ہوتے ہیں. تو کل شرکت کی یا شرکت ہی نہیں کی کسی بھی اجلاس میں انہوں نے گزشتہ دنوں؟ نہیں جی، کسی فارمل اجلاس میں شرکت نہیں کی. وہ ہماری مہمان ہیں، یہاں موجود ہیں، اور لوگوں سے کچھ ایک آدھ لوگوں سے جو ہمارے پارٹی کے سینئر لیڈرشپ ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ضرور ہوئی ہیں ان کی، لیکن فارمل کسی پارٹی کے سیاسی اجلاس میں اور خاص طور پہ احتجاج کے حوالے سے تو ایسا کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی بات کا فی الحال کوئی امکان ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، تو اس لیے اجلاس میں شرکت کرنے کا بھی کوئی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور جو 24 نومبر کو احتجاج ہونے جا رہا ہے، کیا اس میں ان کا انپٹ شامل ہوگا یا وہ دے رہی ہیں کوئی انپٹ؟ ان کا انپٹ میری رائے میں تو دعاؤں کی حد تک ضرور ہوگا. وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گی، اور انشاءاللہ ہمارا احتجاج جو ہے وہ لاکھوں ماؤں اور بہنوں کی دعاؤں سے کامیاب ہوگا. اور ایسا کیا کریں گے الگ سے؟ ورثہ صاحب ظاہر ہے پہلے بھی احتجاج علی امین گنڈاپور صاحب نے لیڈ کیا ہے، باقی رہنما نہیں آئے، جس پر بہت زیادہ پارٹی میں تنقید بھی ہوئی. اس دفعہ کیا الگ ہوگا؟ کیا سب آئیں گے؟ اور کیونکہ ہمارے پروگرام میں تو مروت صاحب نے یہ بھی کہا کہ پیسے بھی بہت زیادہ علی امین گنڈاپور صاحب نے اپنی طرف سے لگائیں. پھر پارٹی کے ترجمان اس وقت کے رؤف حسن صاحب کہہ چکے کہ ہماری پارٹی کے پاس فنڈ ختم ہو گئے ہیں، تو یہ سارے ایم این ایز ہی اپنے اپنے حلقوں سے پیسے لگا کے لوگوں کو لے کے آئیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ احتجاج تو صوبہ پنجاب سے اور صوبہ خیبر پختونخوا سے زیادہ تعداد شریک ہوگی، کیونکہ باقی علاقے تو کافی دور ہیں. یقیناً وہاں سے بھی ریپریزنٹیشن ہوگی، لیکن مین جو بلک ہوگا ورکرز کا وہ تو یہ دو صوبوں سے آئے گا. اسلام آباد کی طرف جائیں گے، مارچ ہوگا، اور پھر وہاں انشاءاللہ احتجاج کو بہت زبردست طریقے سے کیا جائے گا. لیکن یہ جو وسائل کی بات ہے شاہزیب، آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل پارٹیز اپنے ریسورسز کو جنریٹ کرتی ہیں. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم کوئی بہت امیر کبیر پارٹی ہیں، یقیناً ہماری بھی کنسٹرینٹس ہیں، لیکن قربانیاں اس سیاست میں اور سیاسی جدوجہد میں دینی پڑتی ہیں. وہ جانی قربانیاں بھی ہیں اور مالی قربانیاں بھی ہیں، یہ ہم دیں گے، اور احتجاج کو انشاءاللہ ہر صورت میں کامیاب بنائیں گے. مگر کیا، کیونکہ سارا بھائی صاحب کی خبر ہے کہ بہت سارے پارٹی کے سینئر رہنما ایسے ہیں جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی عمران خان صاحب کو سمجھایا جائے کہ فوری طور پر اس قسم کے احتجاج کی نہ کال دی جائے. کہ علی امین گنڈاپور صاحب بھی ان رہنماؤں میں شامل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی نہ ہو تو بہتر ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب کا ہے، ان کی طرف سے یہ تاریخ آئی ہے، اور اس لیے تمام پارٹی اس بات پر بالکل کنونسڈ ہے، متفق ہے، یکسو ہے کہ خان صاحب کے حکم پر جو ہے احتجاج کیا جائے گا. اگر کسی پارٹی کے کسی رہنما کو یا کسی ورکر کو یا کسی بھی اہم شخصیت کو اس تاریخ کے حوالے سے کوئی تحفظات ہیں تو وہ ہو سکتے ہیں، وہ انسانی رائے ہے. ظاہر ہے پارٹیوں میں ہزاروں لوگوں میں ڈفرنٹ رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. بہرحال پارٹی کا اور پارٹی کی لیڈرشپ کا فیصلہ یہی ہے کہ وہ 24 نومبر کو انشاءاللہ احتجاج کریں گے، نکلیں گے گھروں سے، اور احتجاج کے جو مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے اپنی کوشش کریں گے. باقی تحفظات اور یا کوئی ریزرویشنز اگر کسی کی ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن پارٹی کا اجتماعی فیصلہ جو ہے وہ اب سب کا فیصلہ ہے. مطلب ظاہر ہے خان صاحب کے احکامات ہیں، مگر جو پچھلے احتجاج ہوئے اس کے بعد اگر لیڈ علی امین گنڈاپور صاحب ہی کرتے ہیں، خیبر پختونخوا سے کرتے ہیں، اور کیونکہ واپس نہ آنے کی بات کی گئی ہے، تو لوگوں کو لانا پھر بٹھانا 24 نومبر مطلب سردی، پھر ان کے واش روم کے انتظامات، پھر پولیس کا کریک ڈاؤن الگ سے ہو رہا ہوگا ریاستی، کیسے مینج ہوگا یہ؟ انشاءاللہ مینج کر کے رہیں گے جی. دیکھیں، علی امین گنڈاپور صاحب تو خیبر پختونخوا سے جتنے بھی ورکر ہوں گے انشاءاللہ ان کی قیادت کریں گے. اس طرح پنجاب کی لیڈرشپ، پنجاب کے مختلف شہروں سے جو نکلیں گے لوگ، ان کی قیادت کریں گے. اسلام آباد کی طرف رخ ہوگا. اب رہ گئی بات یہ جو آپ بات کر رہے ہیں رہائش کی اور کھانے پینے کی اور دیگر جو ضروریات ہیں، انشاءاللہ وہ ہم پوری کریں گے، بھرپور کوشش کریں گے. جو ورکر آئیں گے وہ بھی ذہنی طور پر تیار ہیں کہ انہیں مشکل حالات میں جانا بھی ہے، اور وہاں پہ ظاہر ہے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں تو نہیں رہیں گے، اسی طرح ہی رہیں گے جس طرح کے احتجاجی مظاہروں میں ورکرز رہتے ہیں. لیکن ہمارا ورکر ٹرینڈ ورکر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا کوئی پہلا احتجاج نہیں ہے. گزشتہ
2 महीनों में 4 मरतबा हमने इस्लामाबाद की तरफ और 1 मरतबा लाहौर की तरफ मार्च किया है। हमारे वर्कर ट्रेंड है। इससे पहले आपको पता है डी चौक में हमने कई महीने का धरना भी दिया है। तो हमें तजुर्बा भी है और इंशाल्लाह हमारे वर्कर कुर्बानी के लिए तैयार हैं, सख्ती भी बर्दाश्त करेंगे। वैसे जो आपने पिछले 4 एहतजाज किए उसके मतलूबा नताइज आपको नहीं मिले, और सिर्फ वर्कर के निकलने से तो काम चलेगा नहीं। अब तो आपकी पार्टी कह रही है सब अवाम निकले, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, उनकी बहन भी कह रही है, आपके सेक्रेटरी जनरल भी कह रहे हैं। तो इतने सारे अवाम आपको लगता है कि निकल आएंगे कि हुकूमत पर कोई दबाव पड़ जाए और आपके मुतालबात मान लिए जाए? देखें, जो आपके सवाल का जो पहला पॉइंट है कि मतलूबा नताइज, मैं ये समझता हूँ कि एहतजाज एक सियासी सरगर्मी है जिसमें अपनी राय का इजहार किया जाता है और अपने सियासी मुखालफिन को अपनी क़ुव्वत का मुजाहरा करके उनको ये बताया जाता है कि अवाम की राय जो है वो जो एहतजाज करने वाले हैं उनकी तरफ है। अब ये तो एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होती है जिसके में एहतजाज भी एक हिस्सा है। हम एहतजाज करने जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एहतजाज से आपको 100% नताइज हासिल हो, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमने नताइज हासिल किए हैं। आज भी अगर हम पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन सियासी जमात हैं और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा अवाम हमारी सपोर्टर है और हमारी वोटर है, तो वो हमारी इसी सियासी स्ट्रेटेजी का एक वो है, एक नतीजा है कि लोग हम पर एतमाद करते हैं और हम लोगों के हुकूक की पासदारी करते हुए, उनकी तर्जुमानी करते हुए सड़क पे निकलते हैं। तो पहली बात तो ये तो आप समझते हैं कि एहतजाज किसी भी लेवल का हो, कहीं भी हो, जैसा भी हो, वो हमारे पॉइंट को मजीद मुस्तहकम करता है और हमारे ऑब्जेक्टिव्स को मजीद स्ट्रेंथन करता है। रह गई बात ये जो आपने दूसरी बात की निकलने की हद तक, तो जैसे मैंने कहा हमें यकीन है कि अवाम हमारे साथ है, हमारे साथ निकलेगी और वर्कर भी हमारा चार्ज्ड है, हमारा वर्कर ट्रेंड है, मोबिलाइज कर रहे हैं पूरे। मैं तो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक बात करूंगा, हम तो तमाम सूबे से इंशाल्लाह लोगों को निकालेंगे और हमारे वर्कर तो खुद हमें बता रहे हैं, हमसे डिमांड कर रहे हैं कि एहतजाज की डेट दें। और जब खान साहब ने डेट दी तो उसके बाद वो काफ़ी एक्साइटेड और वो हैं, मोटिवेटेड हैं। अलबत्ता एक बात आपको बताऊँ शाहजेब के ख्वाजा आसिफ और ये जो हमारे दीगर राना सनाउल्लाह वगैरह हैं जो सिर्फ बड़क मार प्रोग्राम होता है, ये हमेशा अली अमीन गंडापुर के बारे में कहते थे कि वो तो बंदे नहीं निकाल सकेगा, वो अटक का पुल उसको हम क्रॉस करने नहीं देंगे। आपने देखा एक बार वो लाहौर गया, वहां जलसे से खिताब किया, 3 बार वो इस्लामाबाद आया, इनके तमाम कंटेनरों को मगर सर साहब वो फिर भी कहते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज हैं, वो पार्टी की लीडरशिप को भी मुतमईन करते हैं और दूसरी तरफ क्वार्टर्स को भी मुतमईन करते हैं, इसलिए नुकसान भी नहीं पहुंचाते और पार्टी को भी मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, वो ये भी कहते हैं। वो शाहजेब पश्तो की एक कहावत है, उर्दू में भी शायद यही है कि छलनी ने कूजे से कहा कि तुम्हारे अंदर सुराख है ना। तो अब वो लोग के जो कंप्रोमाइज्ड की तारीफ और मिसाल बन चुके हैं, डेफिनेशन ऑफ कंप्रोमाइज पॉलिटिशियंस ये हैं। अब मिसालें लोग देते हैं इनकी कि ये किस तरह से डिग्गियों में बैठ के गए हैं और कहां पर इन्होंने कंप्रोमाइज किए, और आज भी इनकी हुकूमत जिस वजह से चल रही है वो पूरी कौम को, क्या पूरी दुनिया को पता है। वो हमें कह रहे हैं कि हम कंप्रोमाइज्ड हैं, हमारा लीडर जेल में है, हमारी 80 साला डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जेल में है, हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में है, हमारे महमूद रशीद और एजाज चौधरी जेल में है, हमारी खवातीन तक नहीं बख्शी गई, मुकदमात चल रहे हैं, रोजाना पेशियां भुगत रहे वजीर आला रोजाना। मतलब तो इस सबके ऑब्जेक्टिव के लिए अब देखें, अब 26वीं तरमीम रिवर्स करना, इसके अलावा मैंडेट वापस करना, आइन की बहाली, मैंडेट की, ये इस सब के लिए आप ये मुतालबा है, तो मिनिमम भी कोई मुतालबा है, क्योंकि मैक्सिमम का मतलब है कि, और खान साहब कह भी रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात भी के तो हैंडलर से करेंगे, तो कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए, इस पर आप मुज़ाकरात की डिमांड कर रहे हैं, आपके ख्याल में पूरा हो जाएगा इस एहतजाज से? हमने टारगेट जो है वो यकीनन ऐसा ही रखा है। हम तो चाहते हैं कि जब तक इनका खात्मा ना हो जाए और इस जेली हुकूमत का खात्मा ना हो, इनका एहतसाब ना हो, इलेक्शन का ऑडिट ना हो और इलेक्शन के नतीजे में जो एक्चुअल अवाम ने जिनको मैंडेट दिया है, जो PTI के उम्मीदवार हैं, वो दोबारा असम्बलियों में जाके ना बैठे, उस वक्त तक कोई भी मुतालबा या कोई भी इस्लाही कोशिश या कोई रिफॉर्म पैकेज वो बेमानी होगा, उसकी कोई ना कानूनी हैसियत होगी ना आईनी हैसियत होगी। इसलिए हमारा टारगेट तो यही है। लेकिन जैसे कहते हैं कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद, तो हम सितारों पे कमंद डाल रहे हैं और इंशाल्लाह हमें आप देखेंगे कि हम पॉलिटिकल माइलेज भी हासिल करेंगे और हम इन पे इतना मजबूत टेंट डालेंगे कि ये मजबूर होंगे कि ये हमारे साथ क्या जो आवाम का मुतालबा है उसको तस्लीम करें। मतलब जवानों से ख्याल आया, क्योंकि वो कहा गया कि मुज़ाकरात हैंडलर से हो, तो अगर उन्होंने मोहसिन नकवी को भेज दिया मुज़ाकरात के लिए तो फिर उनसे करेंगे? मोहसिन नकवी साहब के बारे में तो हमारे लीडर इमरान खान साहब की
पर्सनल इंस्ट्रक्शंस हैं कि उनके साथ हम कोई बात नहीं करेंगे। मोहसिन नकवी साहब के अलावा उनके पास काफ़ी चर्ब जुबान और अय्यार और मक्कार लोग मौजूद हैं, उनमें से किसी को भेजेंगे और हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। खान साहब ने कहा हम एस्टैब्लिशमेंट अगर हमारे साथ बात करेगी तो हम शायद मैं उन्हीं का जिक्र कर रहा था। वो अब कोई सर्विंग जर्नल से मुज़ाकरात करने हैं या मोहसिन नकवी साहब को अगर नॉमिनेट किया गया तो कर लेंगे? देखें मेरी एक बात सुने, अब ये जो है ना थोड़ी सी कबल अज वक्त बात है। पहले तो हम अब एहतजाज कर रहे हैं, अब हमारे साथ कोई राब्ता करेगा और हमसे कोई बात करेगा तो फिर हम उस पर कंसिडर करेंगे कि क्या हमने किसी से मुज़ाकरात करने यानी अभी तक तो हमारा एक ही टारगेट है और वो यही है कि इस्लामाबाद हमारी मंजिल है और 24 तारीख को हम निकलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, ये टारगेट है। अब इस टारगेट से पहले अगर कोई इंटरेक्शन होता है उसके बाद पार्टी सोचेगी, खान साहब से मशवरा होगा, उनके अहकामात की रोशनी में हम बात करेंगे, अगर उनको कबूल होगा मुज़ाकरात करेंगे, नहीं होगा तो हम आएंगे और एहतजाज करेंगे। मगर इस सब में क्योंकि वापस जाना नहीं है ऑब्जेक्टिव अचीव किए बगैर, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं अली बिन गंडापुर साहब, तो वो भी यहीं रहेंगे या सुबह चलाने के लिए वो वापस चले जाएंगे और कारकुन और दीगर रहनुमा एहतजाज कर रहे होंगे? नहीं देखें, अफराद नहीं मैटर करते शाहजेब। तहरीकों में अली अमीन गंडापुर एक शख्सियत है, वो लीडर है, उसकी सरबराही में कारकुन निकलेंगे, लेकिन कारकुन अपना भी एक विजन रखते हैं। एक्चुअल लीडर, असल लीडर इमरान खान है, उसकी इंस्ट्रक्शंस होंगी। अगर वो कहेंगे कि जी अली अमीन को इस्लामाबाद में ही बैठना है, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते तो अली अमीन साहब इस्लामाबाद में बैठेंगे। अगर वो कहेंगे कि कोई और लीड करे, अली अमीन जो है वो सूबे के मामलात भी देखे, तो वो भी हो सकता है। अभी ये सारी चीजें कबल अज वक्त है और कयास आ रही ही है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मगर सर आपको लगता नहीं है कि अगर ये जो एहतजाज है और अगर इसके आप मतलूबा नताइज नहीं हासिल कर पाए तो ये आपके मुतालबात की मंजूरी के बजाय उल्टा पार्टी पर मजीद सख्त वक्त भी ला सकता है, इमरान खान साहब के लिए भी और बुशरा बीबी के लिए भी सख्त वक्त ला सकता है? हम समझते हैं कि इस वक्त जिस किस्म के दौरे इब्तिला से हम गुजर रहे हैं, इससे ज्यादा सख्त वक्त और क्या आएगा। हमें दोबारा जेलों में डाल दिया जाएगा, डाल दें। हमें हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया जाएगा, कर लें। इन्होंने अभी भी किया, ये 4 और 5 अक्टूबर को क्या हुआ है आपके सामने था, किस बुरी तरह से तशद्दुद किया गया, गैर कानूनी हिरासतों में लोगों को रखा गया, 20-20 दिन रखने के बाद बगैर मुकदमे और FIR के रखा हुआ था और उसके बाद छोड़ दिया। तो ये सब कुछ तो हमारे साथ पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा है। इससे ज्यादा जबर और क्या होगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिदा कैंसर सर्वाइवर है, 80 साल एज है, वो जेल में पड़ी हुई है। हमारे कई बेगुनाह, हजारों बेगुनाह लोग जेलों में पड़े हुए हैं, अभी भी पड़े हुए हैं। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने दें इनको। अगर इन्होंने रियासती जबर इस्तेमाल करने कर लें, और हमारा जो है वो मुतालबा जो है हम उसको परसू कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह अपने अहदाफ हासिल करेंगे।